من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین اور زوم ایپ میٹنگ کلاس کو اٹینڈ کرنے والے پیارے بچوں، دوست احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس موقع پر کل تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات ہم مسئلہ کی تنظیم ہے جو اخلاق اور آداب، ماں باپ کی خدمت، دوست احباب، خاندان، ان سب میں روابط اور پیار محبت پیدا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے لیے مسلمان بچوں کو خاص کر اس کی تعلیم و تربیت دینا، اور تمام برادران وطن اور سارے انسان جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ہماری ریاست میں رہتے ہیں، ہمارے ضلع میں رہتے ہیں، ان سب کو ہم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے یہ روڈ ڈسپلن کا چیپٹر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ سب کو کام آنے کی چیز ہے اور سب کو گائیڈ کرے گا، سب کو گائیڈ کرے گا، سب کو فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور مدرسے میں، عربی ٹیوشنز میں بھی، اور راستہ چلنے والے اس کے آداب کیا ہیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہماری آبادی، ہمارے ملک کی آبادی، ہماری ریاست، ہمارے ضلع کی آبادی الحمدللہ اتنی ہے کہ تھک پاپولیٹڈ کہتے ہیں، گنجان آبادی ہے، تو لہذا اس میں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے یعنی کس طریقے سے پیار محبت سے ملتے ہوئے، ایک دوسرے کو سلام کلام کرتے ہوئے، چاہے کوئی برادری کے ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی برادری کے ہوں، سب ایک دوسرے کو آداب، سلام، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طریقے سے راستہ بھی چلے تو یہ دیکھتے جائیں کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور انسانیت کے ساتھ پیش آئیں، اور راستے کے جو آداب ہیں اس کو فالو اپ کریں، چونکہ حادثات وغیرہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہے پیار، محبت، ہمدردی کی، اس کو ہم فالو اپ کریں۔ یہ نیکی کے کام ہے جو ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور یہ مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، اور یہ ہم کو جنت پہ لے جائیں گے، چونکہ محلہ، بازار وغیرہ میں جہاں بھی انسان رہتے ہیں وہاں پر ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، پیار محبت کا سلوک کرتے ہوئے، ہم راستے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم چلیں۔ تو اس لحاظ سے کل کے چیپٹر میں ایک 5 باتیں آئی تھی کہ کیو مینٹین کرتے ہوئے، اور جب بھی راستہ چلیں لیفٹ سائڈ سے چلیں، اور 2 4 مل کر اگر چل رہے ہیں دوست احباب تو یعنی ہاریزنٹل نہ چلیں بلکہ ورٹیکل، یعنی کہ کیو کی طرح 2 پاس ہو جائیں، اور اس طریقے سے اور ہر جگہ کیو مینٹین کریں۔ کیو مینٹین کرنے سے ہڑبڑ نہیں ہوگی، حادثے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ کانٹا، پتھر، موس یا کیلے کے، بنانا کے جو چھلکے ہوتے ہیں راستے میں، اگر وہ ہٹاتے جائیں، چونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، تو اس کو ہٹاتے رہنا۔ ہٹاتے رہنے سے کیا ہوتا، دوسرا آدمی حادثے سے بچ جائے گا، اس کا پیر پھسل کے وہ گر جائے گا تو اس کے سر کو چوٹ آئے گی، ہاتھ پیر ٹوٹے گا۔ اس لیے ہم ان کو حادثے سے بچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی کیا ہے، اس کا اجر ثواب دے گا، ہم کو بھی حادثات سے بچائے گا۔ پھر اس کے ساتھ وہاں گلیوں میں ہو، سڑکوں کے آزو بازو میں ہو، لائٹ کے ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کو فینسنگ کرانے کے لیے آپ محکمہ الیکٹرسٹی کو، یعنی کرنٹ والوں کو اس کو توجہ دلائیں کہ یہاں پر حادثے ہوں گے، بچے چلتے ہیں اور جانور وغیرہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں میں، گاؤں میں، تو اس کو فینسنگ کر کے اطراف سے جالی وغیرہ لگا دیں تاکہ کوئی پاس نہ ہو۔
ये कल का चैप्टर्स थे। आज 5 बातें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहली चीज़ है, मोटरसाइकिल गाड़ी बगैर लाइसेंस ना चलाएं। यानी गाड़ी अगर चलाना है, स्कूटर चलाना है, स्कूटी चलाना है, या यानी बस चलाना है या कार चलानी है, तो कोई भी 4 व्हीलर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, बगैर लाइसेंस के ना चलाएं, वरना पुलिस और आरटीओ चालान कर देंगे और आपको जुर्माना डालेंगे और आपको क्या है टाउन में बिठा देंगे, आपको जेल में भेजा सकते हैं। इसलिए आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी को टच ना करें। क्योंकि घरों में वालिदैन के गाड़ियाँ होते हैं, वो गाड़ियाँ ले जाने की बड़ी फिक्र होती है। वालिदैन क्या है, खामोश हो जाते हैं या नहीं देखते हैं, बच्चे गाड़ियाँ ले लेके जाते हैं, हादसा वगैरह कर देते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी बात ये है, शहर में मोटरसाइकिल, ऑटो, लारी, बस, सिटी बस की रफ्तार, जो रफ्तार होती है सड़कों पर, वो रैश ड्राइव जो होता है, ड्राइविंग जो होती है, रैश ड्राइविंग, यानी तेज रफ्तार, मैं सबसे पहले बढ़ जाता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार दरअसल उसके लिए परेशान कौन रहती है, क्या परेशान होती है? अब देखिए, ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो रहती है, ये स्पीड इतनी स्पीड होती है, यहाँ पर चलने वाला उन्हें ओवरटेक करके इधर आ जाता है। ओवरटेक क्या है मालूम है? बहुत बड़ा क्या है, यानी हादसे के लिए क्या है रीजन बनता है। तो कभी भी क्या है, रफ्तार, उसकी रफ्तार बहुत हिस्सा ओवरटेक होने ना दे। ओवरटेक, क्योंकि शहर में रहने के बाद, शहर में चलने के बाद गाड़ी स्लो चला दें, या तो 20 की स्पीड से चलाएं, 20 या 30 या 40, ये इससे ज़्यादा स्पीड सिटी के अंदर ना हो, वरना आप देखेंगे कि हादसा हो जाएंगे। हादसा होने के बाद एम्बुलेंस आएगी, आपको ले आके दवाखाने में डालेगी, और इसके साथ साथ आपको मसाइल का शिकार, आपकी घड़ी कुपा हो जाएगी, या आपका हादसा होकर आप ये भी हो सकते हैं। असल ज़्यादातर हादसा जो होते हैं ओवरटेक से होते हैं। ओवरटेकिंग कभी ना करें, यानी कि चलते 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 इसके पीछे जाए, स्पीड अपनी कम हुई परवाह नहीं, 1 बाई 1 जाए। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इधर से ओवरटेक करने का क्या तरीका है, किधर से जाना चाहिए, ओवरटेक कैसा होना चाहिए। अब ये जा रहे हैं, ये डिवाइडर है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो हम क्या करते हैं, ये ओवरटेक करने के लिए ये जा रहे हैं, तो ओवरटेक करने के लिए लेफ्ट से ओवरटेक करते बाद लोग लेफ्ट से ओवरटेक करते। कभी भी लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बट के राइट से ओवरटेक करना। अच्छा, जरूरत पड़ी तो। और ओवरटेक करने के लिए जाहिर बात है कि जिसकी स्पीड जो है, वो स्पीड से हमारे को ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। तो जहाँ ओवरटेक की ज़रूरत है वहाँ ओवरटेक कर लें, जहाँ नहीं है गैर जरूरी ना करें, हटा मारते हुए बस ऐसा चले हैं, ऐसा चले हैं, ऐसा चले हैं, कटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। ये कट मारते हुए बोलते हैं उसको, कट मारते हुए जा रहा देखो बोले, फिर रैश ड्राइविंग कर रहा देखो बोले, फिर मफलर निकाल देते, यानी बाइक का मफलर निकाल दिए तो पों 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 पुकार लेते हुए भेजा खराब हो जाता है लोगों का। तो इस तरीके से हमारे जो स्पीड है, स्पीड बिल्कुल हिसाब किताब से होनी चाहिए, वरना हादसा हो जाएंगे तो मसाइल का शिकार हो जाएंगे। हम ये चार्ट्स इस वास्ते रखे हैं, ये स्टिकर बनाए हैं, ये बच्चे अपने नोटबुकों के ऊपर, नोटबुक अपने एक्सरसाइज नोटबुक होते हैं या बुक्स होते हैं, या घरों में, ये हर जगह इसके स्टिकर्स निकाल कर, ये स्टिकर्स आप लगा लेके इसको फॉलो अप करते जाएं, इसको फॉलो अप करते जाएं और इसको देखते जाएं। क्योंकि ये जो रोड डिसिप्लिन है, ये हैदराबाद में आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हम इसको खिलवत में, वहाँ उर्दू हाल है, वहाँ पर हम डिप्टी कमिश्नर पुलिस और कमिश्नर पुलिस, इन सबको हम वहाँ दावत दिए थे कि इसका इनाग्रेशन करें, और फर्स्ट एड बॉक्स भी क्या है चौरास्तों पे लगाएं। ये चैप्टर कल नहीं परसों आएगा। अब तो फिलफोर क्या है, स्पीड की बात चल रही है, स्पीड अपनी कम से कम रखें। फिर उसके बाद बच्चे वालिदैन की गाड़ी इस्तेमाल ना करें। अगर 18 साल के हैं बच्चे, अगर 18 साल के हैं तो उसके ऊपर उनको लाइसेंस मिलेगा। अगर 18 साल के नहीं हैं तो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो गाड़ी बिल्कुल ना छुएं। फिर इसके साथ स्कूल कॉलेज के औकात में बच्चे नजर आए तो उनको स्कूल में शरीक करने के लिए हम, क्या होता है, रास्ता जब चलते हैं तो रास्ता चलते हुए
देखते जाएं, इधर उधर देखें कि उस वक्त कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, तो उसको हम किस तरीके से क्या है सपोर्ट करना चाहिए, उसको कैसे क्या है मदद करनी चाहिए, इसकी फिक्र में रहें। क्योंकि हम अपने नफ्सा नफ्सी अगर आप करते रहेंगे तो जाहिर बात है कि कोई तड़पता रहेगा, आप उसको नहीं छुएंगे, अच्छी बात नहीं है। इसलिए अलबत्ता हादसात में है तो फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले क्या है वहाँ पर फर्स्ट एड के वास्ते कोशिश करें कि इनको फर्स्ट एड क्या है मालूम है दिलाया जाए, वरना फिर क्या होगा, अगर कोई हादसे का शिकार हो गए तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी और वो तड़पता रहेगा। एम्बुलेंस को बुलाएं, एम्बुलेंस 108 बोल के आ जाती है, फ़ौरन एम्बुलेंस आकर इनको ले जाती है। आप इसको फर्स्ट एड करवाएं क्योंकि हमदर्दी करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ बच्चे जहाँ भी आप रास्ते में जाते हुए बच्चे खेलते रहते, तो ये बच्चों को आप पकड़कर उनको ये कहें कि भाई स्कूल के औकात में बच्चे बाहर ना दिखें, बच्चे बाहर ना दिखें स्कूल के औकात में। तो हमको चाहिए कि हम बच्चों को स्कूल में शरीक कराने के लिए उनको तरगीब दें। तो ये दरअसल ये आज ये 5 बातें हैं आपके सामने आई हैं और इसका हम पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप क्या है हमारा जो डिसिप्लिन है, इसको रोड डिसिप्लिन कहते हैं, इसको रोड डिसिप्लिन कहते हैं। ये अंग्रेज़ी में भी फराहम होगा और ये उर्दू में भी फराहम होगा। इससे आपके बच्चे जब सीख जाएंगे, हम इसलिए ये बता रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग क्लासेस जो चल रहे हैं इस्लाह माशरा की तरफ से, इस्लाह माशरा की तरफ से जब क्लासेस चल रहे हैं तो जाहिर बात है कि ये बच्चों को हम सिखाकर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको परफेक्ट बनाएं और बच्चे अखलाक, आदाब और रेस्पेक्ट और उसके साथ साथ ये रास्ते के आदाब सीखेंगे तो ये अच्छे शहरी बनेंगे, अच्छे शहरी, बेस्ट सिटीज़न। ये बच्चे जो बनेंगे बेस्ट सिटीज़न बनेंगे। इसलिए इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। बच्चों को घरों में माँ बाप ट्रेनिंग दें और बच्चे वालिदैन की बात सुने, उस्ताद की बात सुने और बड़ों की बात सुने, वो तो फ़ायदा उठाएंगे। जब ये बड़े होंगे तो सही तरीक़ा, सलीक़ा, रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आएंगी